مزید معلومات کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، سب نیوز HD کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ الدنيا وذروتها ومن علومك علم اللوح والقلم۔ وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے، شفیع مطاع نبی کریم جسیم نسیم قسیم وسیم۔ تیری ہر ادا پہ ہے جاں فدا، مجھے ہر ادا نے مزہ دیا۔ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ اے راہ حق کے شہیدوں وفا کی تصویروں، اے راہ حق کے شہیدوں وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں۔ چلے جو ہوں گے شہادت کا جام پی کر تم، چلے جو ہوں گے شہادت کا جام پی کر تم، رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا۔ علی تمہاری شجاعت پہ ناز کرتے ہوں گے، حسین پاک نے ارشاد یہ کیا ہوگا۔ تمہیں خدا کی رضائیں سلام کہتی ہیں۔ اے راہ حق کے شہیدوں، تمہیں وطن کی ہوائیں فضائیں سلام کہتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد درود لامحدود سرور کائنات احمد مجتبی محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی پیاری میٹھی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد احباب ذی وقار، انتہائی دلچسپ اور دلوں کو چھو جانے والا موضوع جس کا ہم نے آج اپنی سماعتوں میں چناؤ کیا ہوا ہے اور اسی سے سماعتوں کو لبریز کریں گے۔ دعا کیجئے رب ذوالجلال میری زبان پر حق کے کلمات جاری فرمائے اور ان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ آج کا اہم موضوع ہے اولیاء کا ہے فیضان پاکستان اور اس موضوع میں وہی جذبہ ہم رکھیں گے انشاءاللہ جس طرح بناتے وقت کا جذبہ تھا، کیونکہ یہ وہ جذباتی موضوعات ہیں کہ جن کو بغیر ایمانی جذبے کے بیان کرنا یا سننا کسی حد تک بندہ پیچھے رہ سکتا ہے، لیکن ہمارا اس موضوع کے ساتھ تعلق ربط اس لحاظ سے نہیں کہ یہ ہمارے وطن کا اور ہمارے اولیاء کی طرف سے یہ فیضان کا ہی موضوع بن رہا ہے، ہمارے بزرگوں کی دی ہوئی قربانیوں کا حصہ بھی اس میں ہے اور شہیدوں کا خون بھی اس میں ہے اور جوانوں کی لٹتی ہوئی جوانیوں کا اور بچوں کی بچپن قربان کرنے کا اور ماں بہنوں کی اپنی عزتوں کو حفاظت کے بغیر بھی ایک وطن عزیز کے بنانے کا حصہ بھی اس میں شامل ہے۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو نگاہ اسی طرف بار بار اٹھتی ہے، اتنا بڑا وطن اتنا بڑا دیش بنا تو ہے، لیکن بنانے میں طاقت کون سی ہے، بنانے میں قوت کون سی ہے، بنانے کے پیچھے وہ کون سے سہارے ہیں جنہوں نے یہ وطن عزیز بنایا۔ تو یہی آواز بار بار ابھرتی، اولیاء کا ہے فیضان پاکستان۔ آپ سارے بولے اولیاء کا ہے فیضان پاکستان۔ بولے ذرا اونچی بات سے بولے، اولیاء کا ہے فیضان پاکستان۔ لفظ سے پاکستان پاک سرزمین ہے، استان کا مطلب ہے جگہ، پاک کا مطلب ہوتا ہے طیب طاہر پاکیزہ،
सरजमीन मदीना पाक, मदीना पाक की वो धरती कि जिसकी तस्वीर पूरी दुनिया में अगर बन के कोई मुल्क उभरा है तो वो तेरा और मेरा वतन अजीज पाकिस्तान है। ये मदीना पाक का फैजान भी है, मदीना पाक की तस्वीर भी है और मदीना पाक की इसमें यादें भी हैं। वाहिद ये इस्लामी मुल्क है जो सिर्फ इस्लाम के नाम पे बना। आप निगाह उठाएं, मुताला करें, किताबें पढ़ें, आपको पता चलेगा किसी मुल्क के बनाने में ज़बान का, नस्ल का, रंग का या किसी और वजह का कोई एजाज़ रहा, लेकिन मेरे वतन अजीज पाकिस्तान के बनाने में ना रंग, ना नस्ल और ना ही कोई ऐसी चीज बुनियाद बनी कि जिससे बंदा अपने लफ्जों को शर्मिंदा बना सके। ये वो वतन अजीज है जो सिर्फ खालिस रब की रजा, मुस्तफा की निगाह का फैज लेकर उभरा है और जिसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रखी गई है। ये वो वतन अजीज है जिसकी आबियारी में बड़े बड़े बुजुर्ग का खून बहा है और वो वतन अजीज है दिन रात की अनथक मेहनत के बाद ये सबरा रब ने हमें अता किया। ये वैसे ही हमारी झोली में नहीं डाला गया, ये आसानी के साथ हासिल नहीं किया गया। ये नेहरू और गांधी के चरणों में चरने वाले जालिमों से हमने छीन के लिया है। ये किरपानों पे बच्चे चढ़ा के लिया है, ये जवानों की जवानियां लुटा के लिया है, ये बुजुर्गों की पगड़ियां उछालने के बाद लिया है, ये दाढ़ियों को खून से रंगीन करने के बाद लिया है, ये माँ बहनों की इज्जतों को नीलाम किया जाने के बाद मिला है। फिर आखिर वो वतन, वो देश, वो सरजमीन, वो खित्ता, वो इलाका जिसको पाकिस्तान का नाम दिया गया, बिहम्दिल्लाह ताला आज उस देश में हम जी रहे हैं, बस रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। ये करम है उन पाक लोगों का, उन नफूसे कुदसिया का जिन्होंने दिन रात की मेहनत की, कोशिश की। कहा वो 40 का जमाना, फिर 46 का जमाना और 14 अगस्त, फिर वो रात भी लैलतुल कदर, रमजान का महीना और जुमे की बरकत भी करीब करीब थी। और पाकिस्तान की तरफ लाहौर में जो ट्रेन आई थी उसमें सिर्फ लाशें ही लाशें थी। एक उस ट्रेन का चलाने वाला ड्राइवर जिंदा था, बाकी लाशों से बड़ी हुई गाड़ी थी। अगर दरियाए रावी की तारीख उठाई जाए तो दरियाए रावी की तारीख बताती है वो वक्त आसमान ने देखा और जमीन ने उसका नजारा किया कि खून से रंगीन था वो दरिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। लाशें इतनी बिखरी थी, उठाने के लिए कंधे नहीं मिलते थे। बेसहारा लोग सहारा ढूंढने के लिए तड़प रहे थे। रास्ते में हर कुएं में देखा जाए तो लाशें ही लाशें थी। हर खेत खलियान, बाजार, गली कूचा, नगर, कलिया, बस्ती, वादी, आबादी, जहां देखो डेरा हवेली लाशों से भरा हुआ था। किसी की टांग दूर है तो किसी का बाजू बाजूर है, किसी की गर्दन उड़ी हुई है तो कोई जख्मों से चूर चूर है, किसी का उबलता हुआ खून है और किसी की लुटती हुई जवानी है। फिर मैंने उन जवानों से पूछा, उन शहीदों से पूछा, तुमने वतन क्यों बनाया, तुमने देश क्यों छोड़ा, तुमने इतनी कुर्बानियां क्यों दी? तो हर एक का यही नारा था, हर एक की यही आवाज थी, हर बंदा यही
14 अगस्त 1947 का माहौल बना। पाकिस्तान का वतन अजीज हमें रब ने दिया। फिर क्या हुआ जब पाकिस्तान बन गया, यहाँ पे बड़े बड़े लोग आए, बसे, किसी ने हिजरत की, कोई यहाँ का रहने वाला था। अब उसके बाद राज यही था, समाज यही था, अंदाज यही था, माहौल यही था, आवाज यही थी। लोगों, इस पाकिस्तान को बनाने में ना तो गांधी के चरणों में चलने वालों की हिम्मत है, ना ताकत है, ना उनकी कुर्बानी है। पूछा गया इस पाकिस्तान को बनाने वालों में किसकी कुर्बानी है, तो आवाज आई औलिया का है फैलान, औलिया का है फैलान। बोलो, औलिया का है फैलान। पाकिस्तान, पाकिस्तान औलिया का फैलान कब बनता है? औलिया वली की जमा है, जहां बड़े बड़े औलिया थे, जहां दाता का देश है, ये मेरे ख्वाजा की खैरात है, ये मेरे बाबा फरीद की तहरीर का वो देश है, जहां अजीम वतन बन के वो रहनुमाई मिली, वो गुफ्तगू मिली, वो रोशनाई मिली, वो हमें नूरे नबूवत की चमक मिली। अल्लाह की कसम, मेरे महबूब ने अपने इलाके में बैठ के अरब की धरती में ऐलान किया था, मुझे मशरक से ठंडी हवा आती है, मुझे मशरक से ठंडी हवा आती है, मुझे मशरक से ठंडी हवा आती है। मेरे नबी के ऐलान को जब दाता की नगरी में बैठने वाले, लेटने वाले इकबाल ने सुना था, तो इकबाल की रूह भी तड़प उठी, इकबाल भी रो पड़ा और कहने लगा अपने मदीने वाले नबी को याद करके, मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, ये मेरा वतन है, मेरा वतन है, मेरा वतन है, ये मेरा वतन है, जिसकी मेरे नबी ने बिशारत दी थी। ये मेरा देश है, जिसको मेरे नबी ने निगाहों में रखा था। ये मेरा अजीम मुल्क है, जिसकी बात मेरे महबूब ने मक्का मदीना की धरती में की थी। ये वो वतन अजीज है, जिसको वलियों ने अपनी मेहनत के साथ बनाया है। अहबाब की वकार, शुक्र का कलमा पढ़ना चाहिए। हर रोज सुबह उठते हैं, शुक्र का कलमा पढ़ना चाहिए। मालिक तेरा शुक्र है, पहले नंबर पे हम तेरे नबी के उम्मती है, दूसरे नंबर पे हमें वतन अच्छा मिला है, हमें देश अच्छा मिला है, हमें राज अच्छा मिला है, हमें समाज अच्छा मिला है, हमें मुल्क अच्छा मिला है, हमें इलाका अच्छा मिला है, हमें खित्ता अच्छा मिला है। वो वतन, वो देश, वो मुल्क, वो खित्ता, वो अर्ज़े पाक है, जिसके बारे में कहा जाता है पाक सर जमीन शाद बाद, किस बड़े अजीम शाद बाद, तू निशाने अज़्मे आली शाद, अर्ज़े पाकिस्तान मरकज़े यकीन शाद बाद, पाक सर जमीन का निज़ाम, कुव्वते अखुव्वते अवाम, कौम मुल्क सल्तनत बाइंदादा जिंदाबाद, शाद बाद मंज़िले मुराद, परचमे सितारा हो हिलाल, रहबरे तरक्की हो कमाल, तर्जमाने आजी शाने हाल, जाने इस्तिक़बाल, साया-ए खुदाया दुल जलाल। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर। आप उठाएं, या रसूल अल्लाह, नाराए हैदरी, या अली, मोहम्मद व शान मुस्तफा। जिंदाबाद। अहबाब की वकार, इतना अजीम वतन हो, फिर बंदे बैठ के मुस्कुरा के अपने वतन की ओर दाद ना दे, ये वो वतन अजीज है। मेरे नबी ने फरमाया था, मशरक वालों, पूरा जमाना कहेगा आया ठंडियां हवाओं मदीने दिया, लेकिन मदीने वाला कहता है आई ठंडी हवा पाकिस्तान की। ये मशरक के इलाके की तरफ महबूब ने चेहरा किया, आपने फरमाया सीने को ठंडी हवा लग रही है। मशरक वाले तुम्हें सलामी हो, पाकिस्तान वाले तुम्हें सलामी हो। कैसी खैरात पाई है हमने, हमारी चोटी में खैरात वो आई है जो हर किसी के ने नहीं पाई। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरे नबी की निगाह में रहने वाला वतन अजीज है। क़यामत की सुबह तक मेरे नबी की निगाह का फैज़ मिलता रहेगा, ये उभरता रहेगा।
رہے گا اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے. دبانے والوں نے دبانا چاہا. آپ نے تاریخ پڑھی ہے, اپنے بزرگوں سے سنی ہے, میری بات سنیں توجہ سے. بڑے کمال کے ماحول میں ہم بیٹھے ہیں. وہ 65 کی جنگ تھی, وہ انڈیا والوں کا یہ شور شرابہ تھا. ہم اب تو لاہور کو فتح کریں گے, شیخ پورا پہ اپنا جھنڈا لہرائیں گے. چمنڈا بارڈر ہمارا ہے, یہ شکر گڑھ ہمارا ہے, سیالکوٹ کی زمین ہمارے پاؤں تلے آئے گی. جب وہ کہہ رہے تھے ہندوستان کے وہ سارے پجاری کہ ہم نے پاکستان آگا پھر سے لے لینا ہے, کیا پتا ان کو, کیا پتا ان کو, وہ کیا جانے. وطن عزیز بنانے والے میں سید جماعت علی شاہ تھا, جہاں پیر سیال خواجہ قمر پیر سیال بھی تھا, جہاں محدث اعظم کچھچا شریف تھا, جہاں بریلوی کے امام احمد رضا کے فیض یافتہ شبیر اور ان کے بیٹے تھے. جس پاکستان کو بنانے کے لیے ہم نے بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا ہے. سنی بنارس کانفرنس, سنی کانفرنس جو بنارس میں ہوئی تھی, 5000 سے زیادہ ہمارے بزرگ علماء شیخ بیٹھے تھے, 5000 سے زیادہ پیر بیٹھے تھے, گدیوں والے بیٹھے, ممبروں, محراب, پگڑیوں والے, چپوں, دستاروں والے بیٹھے تھے. انہوں نے یہی کہا تھا کہ پاکستان بنایا جائے گا. محدث اعظم کچھچا شریف جو انڈیا میں جن کا مزار ہے, وہ کہتے ہیں اگر پاکستان بنانے میں محمد علی جناح بھی تھک گیا, ہم پھر بھی نہیں تھکیں گے. اگر یہ رک بھی گیا محمد علی جناح, ہم پھر بھی نہیں رکیں گے. سید جماعت علی شاہ ہر تقریر کی آن تان ان کی ان لفظوں پہ ختم ہوتی تھی. فرماتے تھے کہ مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دیتا, جو مسلمانوں کی جماعت کو ووٹ نہیں دیتا, اگر مر گیا ہم اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کریں گے, ہم اسے ناپائل چھوڑ دیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. ہر پیر اپنے مرید کو سمجھا رہا تھا اب ہم نے ہندوستان کی تقسیم کرنی ہے, ہم نے علیحدہ دیش بنانا ہے, علیحدہ وطن بنانا ہے. اور میرے بھائیوں, اس وقت کا ماحول ہم سے اگر ہم دیکھنے والے ہوتے تو کلیجے اللہ کی قسم تڑپ رہے ہوتے. ابھی جنہوں نے کچھ وڈیرے بزرگ ہیں, جنہوں نے اپنی آنکھوں دیکھا حال بیان کر سکتے ہیں, وہ وقت بیان کرنا وہ آسان کام نہیں ہے. وہ نہریں تھی, دریا تھے, وہ کنویں تھے صرف خون والے, وہ لاشیں تھی زمین پر بکھری ہوئی. گدوں نے گوشت کھانا چھوڑ دیا تھا, جانور بھوکے مرنے والے گوشت کھا کھا کے پیٹ ان کے بھر گئے تھے, پھر بھی پاکستان بنایا جا رہا تھا. وجہ کیا ہے؟ یہ بزرگ 5000 کیوں بیٹھے تھے؟ سنی کانفرنس کیوں ہوئی تھی بنارس میں؟ ہم اپنی تاریخ بھول گئے ہیں. ہمیں سید جماعت علی شاہ کی قربانی یاد نہ رہی, ہمیں خواجہ قمر الدین سیالوی کا ماحول یاد نہ رہا. جب خضر حیات توانا, انگریزوں کا چرنوں میں چرنے والا خضر حیات توانا, اس نے خواجہ قمر الدین سیالوی سے کہا تھا 6 مربع زمین دیتے ہیں, اس کا مالک بن جا, یہ مسلم لیگ سے ہٹ, دستبردار ہو جا, یہ پاکستان کی تحریک سے ہٹ جا, اس وطن کو بنانے کی تحریک سے دور ہو جا. 6 مربع زمین کا مالک بناتے ہیں. خواجہ صاحب نے بڑی سوڑی بات کی, فرمایا تم نے مجھے کیا مالک بنانا ہے, ہمیں تو رب نے مالک بنایا ہوا ہے. رب کے محبوب نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ, یہ زمین خدا کی ہے اور مصطفیٰ کی ہے. زمین خدا کی ہے اور بولے یا سارے بولو, زمین خدا کی ہے اور مصطفیٰ کی ہے. تو پھر مصطفیٰ والے یہاں رہتے ہیں, تو پھر مصطفیٰ والوں کی ہوئی. حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ, تاریخ سنو ذرا. آپ فرماتے ہیں تم مجھے اس علاقے سے 6 مربع زمین کی آفر کرنے والوں, یہ لالچ قمر الدین کو نہ دو. اگر تمہیں یہ ہے نا کہ مجھے انگلینڈ امریکہ میں 6 مربع زمین بھی دے دو, جہاں 6 فٹ خریدنا مشکل ہے, 6 مربع زمین انگلینڈ میں بھی دے دو,
सरजमीन का मालिक बना के बताना चाहता हूँ, मदीने की तस्वीर रब ने हमें अता फरमाई है, मदीने की याद वाला मुल्क रब ने हमें दिया है। अहबाब दी वकार ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह, आपको चेक दिया गया, कहा जितने लिखते हो लिख लो, जो चाहते हो उतने अरबों डॉलर ले लो, हमसे ले लो, पाकिस्तान ना बनाओ। सुनो अल्फाज, ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये चेक मुझे चेक कर सकते हैं भला? जिसने मदीने वाले का लंगर खाया हो उसे आम चेक चेक नहीं कर सकता। आपने उसे, सर्दी का मौसम था, अंगीठी जल रही थी, उसे आग में ढाल दिया, फरमाया ना ना, मोहम्मद के गुलाम बेच नहीं सकते, जिनका सौदा बाज़ार मुस्तफा में हो, जिन्हें हुजूर ने खरीदा हो, वो आम रकम पे बिकने वाले नहीं है। वो चेक चला दिया, किधर हयात दीवाना फिर आपको धमकियां देने लगा। सुनो अल्फाज, धमकियां देने लगा, मार देंगे, जला देंगे, ऐसे कर देंगे, कैद में डाला गया। जिस जगह आपको कैद किया गया उस कमरे में गोबर था, उस कमरे में पेशाब था, उस कमरे में बदबू थी, फिर भी आप कहते हैं मारते हो तो मार दो, जुल्म करते हो तो कर दो, सितम करते हो तो कर दो, इधर आ, तू अपना हुनर आजमा, मैं अपना हुनर आजमाता हूँ, तू आजमा के देख मैं कहाँ तक जाता हूँ। हत्ता के गोबर वाले कमरे में भी रखा गया, मनाया गया, ना माने, बिलाखिर मजबूर करने के बाद ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह को मौत की धमकी दी। तो ख्वाजा साहब ने जो लफ्ज़ बोले, तारीख क़यामत तक उन लफ्ज़ों को भूल न सकेगी। ख्वाजा साहब फरमाते हैं, खिदर हयात दीवाने सुन, मैंने रब के नाम पढ़े हैं 99, कितने नाम? 99 नाम पढ़े हैं रब के, 99 नामों में तेरा नाम नहीं आता। सुभान अल्लाह, बोलो या अल्लाह, सुभान अल्लाह की बात है, तेरा नाम नहीं आता। मेरा रब जिंदा भी करता है, मेरा रब मौत भी देता है, जब तक मेरी मौत नहीं कोई मुझे मार नहीं सकता, जब तक मेरी हयात बाकी है कोई मुझे हयात मिटा नहीं सकता। और मेरा भरोसा मेरे रब पे है, मेरे नबी की साथ पे है। बिलाखिर मजबूरी के बावजूद भी मंजूरी ना हो सकी, खिदर हयात दीवाने ने अपनी बीबियां, अपनी बच्चियां, अपनी बहनें, अपनी औरतें ख्वाजा साहब के पास भेजी कि किसी तरीके से उस बाबे को मनाओ कि इस पाकिस्तान की तारीख से बाहर आ जाए। सुनो, क्या वो लफ्ज़ थे, क्या वो छोटे थे, क्या वो सुनहरी अखबार थे। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने आने वाली औरतों का बड़ा हया किया, बड़े अदब के साथ पेश आए, फरमाते हैं ठीक है औरतें हो, मैं तुम्हारा अदब और इज्जत का ख्याल रखता हूँ, लेकिन मेरी बात सुनो, इतनी बड़ी सिफारिश औरतों के जरिए तब भेजी जाती है जब बंदे की नाक भी रगड़ने के बाद काम न चल सके। फरमाया चलेगा तो अब भी नहीं तुम्हारा काम। क्यों? फरमाते मैंने देखा है आलम रोजा में, आलम मकाशिफा में, मैंने देखा है अपने महबूब को, अरफात का मैदान है, मेरे नबी की जात है, ऐसे नहीं कहते सुभान अल्लाह की आवाज आनी चाहिए, कैसे बोल रहा सुभान अल्लाह। अरफात का मैदान, मेरे नबी की जात, नबी के दीवाने मौजूद, मेरे महबूब ने फरमाया शेर खुदा भी करीब है। ख्वाजा कमरुद्दीन शेर खुदा की औलाद है, हज़रत अब्बास की औलाद है। आप फरमाते हैं मैंने देखा है मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मोहम्मद अली को बुलाओ, मोहम्मद अली को बुलाओ, ये वो मोहम्मद अली जिना है जिसका नाम मेरे नबी ने अपनी जुबान पे चढ़ाया है। मोहम्मद अली जिना को बुलाओ। ख्वाजा साहब
हुजूर ने फरमाया था कल झंडा उसको दूंगा जिससे अल्लाह भी प्यार करता है, अल्लाह का रसूल भी प्यार करता है और वो भी अल्लाह और उसके रसूल से प्यार करता है। ये जंग का मौसम था और फतह नहीं हो रही थी। नबी पाक ने जंग के मौसम में फरमाया कल झंडा दूंगा उसको जिसने झंडा पकड़ लिया, रब फतह दे देगा। जब दिन चढ़ा सहाबा इस आस में थे काश झंडा हमें मिले। महबूब के अली आंखों के मर्ज में मुब्तला थे। महबूब ने फरमाया मेरा अली किधर है? हुजूर आंखों का मर्ज है जिस वजह से नहीं आ सके। महबूब ने फरमाया इधर बुलाओ मेरे अली को। हजरत शेर खुदा आए, मेरे नबी ने अपना दुआ पे दहन लगाया, दुआ पे दहन लगाया, आंखों में नूर आया, चमक तुझसे भागते हैं सब गाने वाले, नूर आया, आंख रोशन हुई, दुखती आंख सही हुई। महबूब ने झंडा दिया, शेर खुदा ने झंडा पकड़ा। सहाबा कहते हैं झंडा पकड़ने वाला शेर खुदा, सुभान अल्लाह, झंडा देने वाला मुस्तफा। उस झंडे को हुजूर ने निशानी बना के बताया, जिसके हाथ में झंडा आ गया उसके हाथों फतह हो गई। क्या नहीं जानते खैबर का किला मेरे अली ने हाथों पे नचाया था। सुभान अल्लाह, वो खैबर के दरवाजे को अपनी उंगलियों पर उछाला था। अली का इश्क का मुकद्दस सवाल देता है। हजरत शेर खुदा से नबी ने झंडा लिया। सुभान अल्लाह, खाजा कमरुद्दीन फरमाते हैं मैं देख रहा था उस जवान मोहम्मद अली को दिया, फरमाया अली पकड़, मोहम्मद अली ये झंडा पकड़। शेर खुदा के हाथ से लेकर मोहम्मद अली को दिया, देने वाले मुस्तफा। उधर भी हुजूर ने झंडा दिया शेर खुदा को, इधर भी हुजूर ने झंडा दिया मोहम्मद अली जना को। उधर भी फतह, इधर भी फतह। इधर गांधी के चरणों में चलने वाले कह रहे थे पाकिस्तान नहीं बन सकता, नेहरू के चलने वाले कह रहे थे पाकिस्तान नहीं बन सकता, सिख कह रहे थे पाकिस्तान नहीं बन सकता, हिंदू कह रहे थे पाकिस्तान नहीं बन सकता, लेकिन खाजा कमरुद्दीन फरमा रहे थे मुस्तफा ने झंडा दे के मोहम्मद अली जना को बता दिया पाकिस्तान बन जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, अज़मत व शान मुस्तफा, जिंदाबाद, नारे हैदरी, नारे हैदरी। या खाजा कमरुद्दीन फरमाते हैं मैं कैसे उस मोहम्मद अली जना से प्यार ना करूं जिसको मोहम्मद का भी फैज मिला है, अली का भी फैज मिला है। दो नाम इकट्ठे होते हैं, कायदे आज़म के नाम में कितने नाम इकट्ठे होते हैं जी? मोहम्मद अली, मोहम्मद जैसा भी कायनात में कोई नहीं। और अली और मुर्तज़ा में भी मेरे नबी को नाम है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। फिर लंदन की सरजमीन जब पाकिस्तान बनाने की तहरीक शुरू की गई, बड़े लोगों ने कायदे आज़म की टांगे खींची। शरीका बड़ी बुराई वाली चीज भी होती है, जब नतीजे पे आ जाए, खींचने पे आ जाए। वैसे तो ये बाजू भी होता है, और खींचने पे आ जाए तो फिर तो बंदे को मिटाने की तरफ ले जाता है। मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह अलैह की टांगे खींची गई, पाकिस्तान नहीं बनाएंगे, अपने ही लोगों ने टांगे खींची। तो उस वक्त आप बड़े दिल बर्दाश्त हुए और जख्मों से चूर चूर थे दिल में। चले गए लंदन में, अल्फाज सुनेंगे आपको चस्का आएगा। लंदन चले गए, वहाँ क़याम पजीर हो गए, रैश दे ली, अब मैं यहाँ रहूँगा, मैं नहीं वापस जाऊँगा। लोग जिस तहरीक में मैं काम करता हूँ, लोग तो मुझे अच्छे नहीं जानते, बातें करते हैं। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम का करम देखो हुआ कैसे। लंदन में फ्लैट लिया, अपने फ्लैट में सो रहे हैं बेड पे, रात का वक्त है। फरमाते हैं ये सैयद साबिर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह बुखारी, सैयद साबिर अली बुखारी, उनकी किताब है बारगाहे रिसालत में मोहम्मद अली जना, ये किताब का टाइटल है। उस किताब में लिखते हैं मोहम्मद अली जना ने अपने करीबी दोस्त को ये बात बताई।
پیچھے سے خط آئی، بڑے صغیر کے لوگوں نے، ہندوستان کے مسلمانوں نے خط لکھے بھیجے کہ آپ واپس آؤ، ہم آپ کی حفاظت کریں گے اور آج کی سربراہی میں آپ کی قیادت میں ہم چلیں گے اور پاکستان بنائیں گے۔ فرماتے ہیں زخموں سے چور تھا، آنے کے لیے مجبور تو تھا لیکن پھر بھی نہ آ رہا، مجبور لوگوں نے کیا خط بھیج کے، نہ آ رہا تھا۔ فرماتے ہیں ایک رات ایسی آئی، میں سو رہا تھا اپنے فلیٹ میں کہ میں جب سویا تو میرے بستر میں حرکت ہوئی، ایسے کھلبلی سی مچ گئی، تھرتھراہٹ آئی، زلزلے کی صورت پیدا ہوئی۔ فرماتی آنکھ کھلی، اٹھا، ادھر ادھر دیکھا، کچھ نظر نہ آیا، پھر میں سو گیا۔ دوبارہ میرا بستر ہلایا گیا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے تو میں محمد علی جناح کا فیض ملے گا۔ فرماتے ہیں دوبارہ میرا بستر ہلایا گیا، میں اٹھا، ادھر ادھر دیکھا، کچھ بھی نہیں۔ کہتے میں نے چیک کیا باہر جا کے، سارے بابے خواب ہیں، سو رہے ہیں اور میٹھی نیند ہے، کوئی بھی نہیں جاگ رہا۔ میں نے سمجھا کہ میرا وہم ہے، زلزلہ نہیں، پتہ نہیں کیوں میرا بستر ہلتا ہے۔ فرماتے ہیں تیسری مرتبہ پھر آ گیا، سو گیا، اب بستر ہلا ہی نہیں، اب بستر ہلا ہی نہیں، جسم ہلا، دل ہلا، روح ہلی، نظر ہلی، سماعت ہلی، بصارت ہلی۔ میں اٹھا، میرے کمرے میں روشنی، چاند، نور، چمک، اجالا، پھر دوڑا سبحان اللہ۔ کہتے میرا کمرہ چمک اٹھا۔ یہ تو محمد علی جناح سے پیار کرنے والے ہی پیار کر سکتے ہیں نا، آگے بڑھ سکتے ہیں، لفظوں کو سن سکتے ہیں۔ کئیوں نے محمد علی جناح قائد اعظم کو کافر اعظم بھی کہا تھا، اور کئیوں نے کہا تھا پاکستان کی پیٹ بھی نہیں بننے دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سنو، کہتے ہیں جب میں اٹھا نا، میری اب تیسری حرکت ہے، اٹھا تو میرے کمرے میں روشنی ہی روشنی، روشنی کے ساتھ ایک ایسی شخصیت، ایسی ہستی میرے کمرے میں آئی کہ جسے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ An extraordinary personality is in my room۔ میرا کمرہ تھا، روشنی سے بھرا ہوا تھا، سونی ہستی تھی، کہتے کبھی پہلے دیکھا بھی نہیں۔ تو میں نے پوچھ لیا، چونکہ یہ بات ساری انگلش میں ہوئی ہے، فرماتے میں نے انگلش میں وہ ساری بات کی اور جواب بھی انگلش میں آیا۔ کہتی ہے میں نے پوچھا ہوا یو، آپ کون ہو، اتنے پیارے؟ تو آواز کیا آئی؟ آئی ایم شور پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محمد علی جناب مجھ سے پوچھتے میں کون ہوں؟ دنیا ترلے کر دیے، یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھروں میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، میرے گھر آؤ میرے آقا۔ یہ تو دنیا ترس ترس کے کہتی ہے، محمد علی جناب آئی ایم یور پرافٹ، میں تیرا نبی، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیرا نبی ہوں۔ قائد اعظم کہتے ہیں پہلی جو لفظ میری زبان سے نکلے حضور کا نام سن کے، کہتے ہیں پہلے الفاظ یہ نکلے، پیس بی اپون یو مائی لارڈ، آقا تجھ پہ درود بھی ہو، سلام بھی ہو۔ قائد اعظم سنی، قائد اعظم کا عشق بتا رہا ہے، ان کو اپنے نبی سے اتنا پیار، کہتے ہیں کوئی گفتگو نہیں کی ابھی، میری زبان پہ ساختہ بول اٹھی، میرے محبوب آپ پہ درود سلام۔ تو میرے نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضور بھی انگلش میں بات کر رہے ہیں، اب میں انگلش اس لیے بولوں گا تاکہ وہ فیوز و برکات نبی پاک کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کے ہمیں ملے۔ ترجمہ اس لحاظ سے کروں گا کہ آپ کو ٹھنڈ پڑے گی کلیجے میں۔ آقا فرماتے ہیں مسٹر جناح، you are urgently required by the Muslim of the subcontinent and order you to lead the freedom movement۔ ادھر کیا کر رہا ہے؟ لندن میں سو رہا ہے، تجھے ہندوستان کے مسلمان بلا نہیں رہے، خط نہیں بھیجے، تجھے بار بار سفارشیں بھیج بھیج کے بلا رہے ہیں، کیوں نہیں جاتا؟ محمد علی جناح کہتے ہیں آقا
बाज हैं। मोहम्मद अली जना फरमाते अल्लाह की कसम, ताकत में भी ताकत आ गई, पावर में भी पावर आ गई, कुव्वत में भी कुव्वत आ गई, जोर में भी जोर आया। कहते हैं क्या अल्फाज है हुजूर के, आई एम विद यू, मैं तेरे साथ हूँ। फिर हुजूर ने अगली बात खोल दी, डोंट वरी एट ऑल, ना घबरा, ये याद रख, यू विल सक्सीड इन योर मिशन इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला। जो भी काम करेगा मेरा रब तुझे फतह अता करेगा, फतह अता करेगा। हुजूर ने पहले बशारत दे दी। मोहम्मद अली जना फरमाते, कहता है मैंने कहा ओके भाई लॉर्ड, हुजूर जिस तरह आपका फरमान है मेरे सर माथे पे, मैंने पूरी पिस्तल खोल किया, हिंदुस्तान के इलाके में पहुंचा। जब यहाँ पे आया तो लोगों ने कहा हमने बुलाया ना आया, हमने खत भेजे फिर भी ना आए, हमने सिफारिशें भेजी फिर भी ना आए, अब किसने भेजा है? सुनो, कहते हैं तुम बुलाते रहे लेकिन ना आया, तुम खत भेजते रहे फिर भी ना आया, लेकिन अब नहीं आया, लाया गया हूं, अब भी नहीं आया, लाया गया हूं, भेजा गया हूं। कहा किसने भेजा, कौन ले आया? फरमाया जिसने मक्का से चल के मदीना बनाया, वो लंदन में आके फरमा रहा था हिंदुस्तान में क्या काम तू करेगा, पाकिस्तान हम बना देंगे। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, अज़मत व शान मुस्तफा। जब मीडिया वालों ने कहा था ना हम पाकिस्तान तोड़ने लगे हैं, मेरी बचतानी कैफियत से आवाज आती बार बार। ख्वाजा साहब लेटे हुए हैं अजमेर में, यानी कि इंडिया में, दादा साहब लेटे हुए हैं लाहौर में, बॉर्डर के करीब। इंडिया वालों ने कहा हम लाहौर में हमला करें, सुबह तक फतह का झंडा लहराएंगे। मेरा विजदान बोल था, ख्वाजा अजमेरी बोले रूहानी पावर से, अली हजमेरी बोले रूहानी पावर से। अली हजमेरी कहते हैं आके तो देखो मैं यहाँ रहता हूँ। सुभान अल्लाह। जिस लाहौर की फतह की बात करते हो आके तो देखो मैं यहाँ रहता हूँ। ख्वाजा अजमेरी बोले जाके तो देखो मैं यहाँ रहता हूँ। और ये बात भी मैं तारीख के नस्लों से बयान करूंगा दलील के साथ। ये जब काम हुआ था 65 की जंग में, तो जो कमांडर इन चीफ था हिंदुस्तान की फौज का, उसका बेटा फ्लाइट लेफ्टिनेंट जहाज में अपने जहाज की परवाज में था, उसने ये बयान दिया है। कहता है मुझे पीछे से आर्डर मिला लाहौर में बम गिरा दे। कहता है मैंने बम गिराया। ये उसने उस वक्त बयान दिया था जब वो जहाज से गिरा, जख्मी हुआ, पकड़ा गया, लाहौर सीएमएच में दाखिल किया गया। उस वक्त हमारे मीडिया वाले ने बयान दिया कि बता तो सही तू क्या कारनामे कर रहा है। कहते हैं मैं तो जो बताऊंगा वो बताऊंगा, लेकिन तुमने मुझे भी जवाब देना है। वो जवाब मैं आपको बताता हूं। वो क्या कहते हैं जब पकड़ा गया, कहते हैं मुझे आर्डर मिला बम गिरा, लाहौर में मैंने बम गिरा दिया। फिर कहते हैं दूसरा मिला आर्डर, 2 दिन 3 बम गिराए मैंने, लेकिन एक मेरा गिरा हुआ बम असर नहीं कर रहा। लाहौर की धरती में न तहस है न नहर है, न ऊंच है न नीच है। कहते हैं उसी तरह लाहौर बस रहा था। हालांकि जहां बम गिराया जाए वो तो कब्र खोद जाता है, वो तो गए बना देता है, वो तो नशे में फेंक देता है। कहते हैं 3 गिरा के भी नाकाम रहा। पूछा क्यों? कहते अब ये मैंने नहीं पूछना मैं क्यों नाकाम था, मुझे तुम बताओ मैं क्यों नाकाम था। ये लफ्ज़ सुनो अल्लाह की कसम कलेजे की ठंड। कहते बताओ मैं क्यों नाकाम था। गिराए मैंने, नाकाम भी मैं। अब पूछा हमसे जा रहा है मीडिया वाले क्या बताएं
बादशाह का पाकिस्तान, ये नबी के या रसूल अल्लाह के नारे लगाने वालों का पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? दस्तूर रियासत क्या होगा? मोहम्मद रसूलुल्लाह। दस्तूर रियासत क्या होगा? दस्तूर रियासत क्या होगा? इसलिए बनाया था, खोल खोल के जुमा पढ़ा करो। इसलिए बनाया था शबीर साहब मस्जिद बना के अपने डेरे को सजा के जाके खोल खोल के सीना खोल खोल के नबी के तरले किया करो, नबी के नारे लगाया करो। ये मौका बार बार नहीं, कौन जाने अगला जुमा कौन पढ़ेगा। पिछले जुमे की खैरात मिल गई, कब्र में नूर आ जाएगा। अपने आप को यहाँ पे सी बारगाह में पेश किया करो। या रसूल अल्लाह, जब आपके चाहने वाले यहाँ बसते हैं, उन चाहने वालों में मैं भी चाहने वाला बैठा हो। और ये कहा था मौलाना जामली ने जब उनको मदीने बार बार नहीं जाने दिया जा रहा था, एक ऊंचे सटीले पर चढ़ के जाते जाती हवा को ये पैगाम दे गए। कहते हैं नसीबे सुबह ऐ हवा जा रही है तू मदीने की तरफ, जब जाएगी ना मेरे नबी के रोज़े के करीब, जाके कहना या रसूल अल्लाह मेरा भी सलाम कबूल कीजिए। और मेरे नबी ने फरमाया था कि मुझे मशरक़ से ठंडी हवा आती है। इकबाल ने कहा था मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन है। इस वतन पे मेरे नबी की निगाह है, इस नबी पे, इस वतन पे दाता का फैज़ है, इस वतन पे ख्वाजा की खैरात है, इस वतन पे बाबा फरीद का जिस्म है। आखिरी दो लफ्ज़ सुन लो, आखिरी दो लफ्ज़। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह दरिया के किनारे पे बैठे थे, वुज़ू करने लगे तो आपका जो गुलाम था खादिम कहता है बाबा जी ये वतन पाक नहीं, जहाँ पाक वतन है उसका नाम था अजूदर, अजूदर पुराना नाम। तो ये पाक वतन कब पड़ा? वो बंदा कहता है ये पतन पाक नहीं, पतन कहते हैं किनारे को। दरिया के किनारे वुज़ू करने लगे तो आवाज आई कि ये पतन पाक नहीं। बाबा फरीद ने उसे चराग में देखा, बेहतर देखो, चराग में देख के फरमाते तू कहता है पतन पाक नहीं, मैं कहता हूँ पाक पतन है। जब मेरे फरीद की जुबान से पाक पतन निकला ना, पाक पतन हो गया। जहाँ फरीद कहते पाक पतन है, अजूदन से पाक पतन हो जाता है। जब नबी मोहम्मद अली जनाब को कहते पाक पतन है,